Now we discuss the next question. Find the area enclosed by the curves y is equal to mod x minus 1 and y is equal to minus mod x plus 1. So let's start out by drawing the graph of y is equal to mod x, which is this. This is y is equal to mod x. Then what is y is equal to minus mod x? वो कैसे मिलेगा? It will be obtained by reflecting the graph of y is equal to mod x in the x-axis. तो below x-axis भी आ गया, y is equal to minus mod x. Now then we have to draw y is equal to mod x minus 1. Mod x minus 1 मतलब आउटपुट में 1 यूनिट्स डिक्रीज हो रहा है, यानी we'll shift the graph 1 unit downwards. This is minus 1. Similarly we have to draw minus mod x plus 1. मतलब minus mod x के ग्राफ को 1 यूनिट क्या करना होगा? 1 यूनिट्स ऊपर शिफ्ट कर देंगे. This would be plus 1. So now we can see कि moreover y is equal to mod x cuts the x-axis. This is the graph of y is equal to mod x minus 1 and this is the graph of y is equal to minus mod x plus 1. Now this graph cuts x-axis at y0. So we'll have mod x minus 1 is 0. That means mod x equals to 1. तो x क्या आ जाएगा? Plus minus 1. This is minus 1 point and this is 1. Similarly यहाँ भी यही होगा. It cuts x-axis. It cuts y-axis at it cuts x-axis at y0. तो क्या होगा? Minus mod x plus 1 is 0. That means mod x equals to 1. Therefore x क्या होगा? Plus minus 1. तो at this point भी क्या है? Minus 1 plus 1. So in effect we have found out the point of intersection. The point of intersection of the curves are points of intersection of the curves are minus 1 comma 0 and 1 comma 0. Now we can actually draw the graph. Once we have found out this, so these are the axes. This is y-axis, this is x-axis. So y is equal to mod x minus 1 का ग्राफ would be, let's say, this is y is equal to mod x minus 1. This is y is equal to mod x minus 1. Similarly, what is the graph of y is equal to minus mod x plus 1? वो हो जाएगा, that would be like this. This is y is equal to minus mod x plus 1 and this point is minus 1 comma 0. This point is 1 comma 0. So actually if we want to find the area, इसमें तो we don't have to do any integration or whatsoever. The required area would be this part and this is symmetrical, exactly symmetrical figures है. तो जितना area above x axis है उतना area below x axis है. तो area above x axis क्या है? That is half base कितना है? तो minus 1 to plus 1, that is 2 units. And height कितना है? This is 0 comma 1 1. This is 1 square unit. So therefore the total area would be, total required area is what? 1 plus 1, that is 2 square units. The correct answer is 2. We could also find out the equation through integration. अब if we find the area of just one portion, सिर्फ इतने portion का हम अगर area निकाल लें, and this would be what? ये तो symmetrical है, we'll multiply it by 4. वहां से भी आ जाएगा. यहाँ भी अगर हाफ बेस इंटू हाइट अगर हम लोग यूज कर ले तो भी सेम आंसर आएगा. if we use इंटीग्रेशन तब भी हमारा आएगा, बिकॉज इस ब्रांच की इक्वेशन क्या होगी?
ठीक है, इस ब्रांच की इक्वेशन विल बी y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन. तो व्हाट विल डू, विल इंटीग्रेट फ्रॉम 0 to 1 माइनस एक्स प्लस वन dx, और इसको कितने टाइम्स कर देंगे, 4 टाइम्स कर देंगे. तो दिस विल गिव यू द रिक्वायर्ड एरिया. उससे भी हम निकाल सकते हैं, दिस विल गिव यू द रिक्वायर्ड एरिया. बट देयर इज नो नीड ऑफ डूइंग दिस बिकॉज नॉर्मल मेथड से ही हमारा एरिया निकले जा रहा है. Let's take the next question. We have to find the area bounded by the curve y is equal to root x and 2y plus 3 equals to x and the x-axis and in the first quadrant. तो y is equal to root x तो हमें पता है. First of all, we will find out the point of intersection. Point of intersection of the curves. Find the point of intersection of the curves. तो y is equal to root x है, if square it तो क्या हो जाएगा, y square is equal to x and 2y plus 3 equals to x. तो 2y plus 3 equals to x की जगह y square. If y square minus 2y minus 3 is 0, तो y minus 3 y plus 1 is 0. तो y या तो 3 है या y minus 1 है. y अगर 3 है तो correspondingly x क्या है, we'll put in this equation y is 3, तो 6 plus 3 9, और अगर y minus 1 है तो x is 1. Therefore the point of intersection are 9,3 and 1,-1. Now we try to draw. हम लोग ने y इक्वल टू रूट एक्स का कैसे पहचाना था, स्क्वायर किया तो y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इज व्हाट, अ पैराबोला. एंड हम लोग ने क्या कहा, रूट एक्स गिव्स यू पॉजिटिव वैल्यूज, तो कौन सा पार्ट ले लेंगे, विल टेक द पार्ट अबव द एक्स एक्सिस, ये वाला पार्ट. दिस इज y इज इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ. लेट्स ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ द ग्राफ्स. These are our axes. This is y axis, this is x axis. तो ये हमारा हो गया y is equal to root x ग्राफ. एंड ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के लिए हमें 2 पॉइंट्स चाहिए प्लॉट करने के लिए. तो इट कट्स x axis at y0, तो x comes out to be 3. It cuts x axis or rather y axis at x0, तो 0, minus 3/2. तो 0, minus 3/2 is this point, and 3, 0 is this point, let's say. The line passing through these 2 points ठीक है. तो ऑब्वियसली 1, -1 पे तो इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहे क्योंकि वहां पे कर्व ही नहीं है y is equal to root x. तो कौन सा पॉइंट है, 9,3. तो this point of intersection is 9,3. The area between the curves and the x axis, ठीक है. तो required area would be, कौन सा एरिया होगा, required area would be this one, x axis और दोनों कर्व्स के बीच में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में. दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया. नाउ दिस एरिया कैन बी फाउंड आउट. लेट्स मार्क दिस 0 a b. तो रिक्वायर्ड एरिया इज OABO. Now this area can be found out by, ये पॉइंट क्या आएगा, दिस इज 9,0. तो कर्व के अंदर, कर्व के बिलो ये एरिया आ जाएगा बिटवीन 0 to 9. उसमें से कौन सा एरिया हम लोग रिड्यूस कर दें, लेट्स से ये वाला, द एरिया अंडर द लाइन, उसको माइनस करेंगे तो हमें ये एरिया मिल जाएगा. नाउ तो रिक्वायर्ड एरिया वुड बी फ्रॉम 0 to 9 y dx. तो y dx वुड बी रूट एक्स dx minus area under the triangle. Let's say this point is C. तो area
of triangle ABC. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज व्हाट, पहले तो ये निकाल लेते हैं, दिस इज x3/2 अपॉन 3/2 0 to 9 माइनस हाफ. दिस कैन बी सिंपली फाउंड आउट बाय बेस. बेस कितनी है 9 - 3 एंड हाइट कितनी है, हाइट इज 3. दिस इज द हाइट and this is the base difference between 9 and 3. So this gives you 2/3 into 9 into square root of 9 is 3. 0 रखने पर 0 ही आएगा, माइनस हाफ into 6 into 3. 2 1s are 2 3s are 3 and 3 goes. Therefore we have 18 minus 9 and therefore 9 square units. This is the required area. So which option is correct? A. This is the correct option. Now we take the next question. The area bounded by the curves y is equal to x plus 1 whole square and y is equal to x minus 1 whole square and the line y is equal to 1/4 is. So now we start out by understanding what is the curve for y is equal to x square. Y is equal to x square का curve is upward parabola. So if we know the curve for y is equal to fx and we have to draw the curve of y x plus a, that means हमें क्या करना है, shift the curve या graph a units towards लेफ्ट अगर ये पॉजिटिव है. नाउ इसी तरीके से अगर y is equal to f x minus a का ग्राफ बनाना है, knowing the graph of f y is equal to fx, तो क्या करते हैं, shift the graph of fx a units towards right. तो अब अगर हमें y is equal to x plus 1 का होल स्क्वायर बनाना है तो what we'll do, we'll shift the graph 1 unit towards the left. Similarly अगर y is equal to x minus 1 का होल स्क्वायर बनाना है तो we'll shift the graph of y is equal to x square 1 unit towards the right. ठीक है, तो now we start the graph. इस केस में हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अभी नहीं निकाल रहे हैं. वी वांट वी कैन फाइंड आउट, बट ग्राफ से ही हम लोग कोशिश करेंगे हो जाए. दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस. So therefore the graph of y is equal to x plus 1 whole square is something of this sort and y is equal to this is minus 1 comma 0. Similarly the graph of y is equal to x minus 1 whole square is this is 1 comma 0. Now y is equal to x plus 1 का whole square cuts y axis at x equals to 0. तो x को 0 रखने पे y कितना आया, 1 आया, यानी ये पॉइंट क्या हो गया हमारा 0,1. सिमिलरली जब y इक्वल्स टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर कट करेगा, कट्स y एक्सिस, तो किस पॉइंट पे करेगा, एट x इक्वल्स टू 0. x को 0 रखेंगे तो क्या होगा, -1 का स्क्वायर अगेन 1, यानी ये ग्राफ भी यहीं से निकलेगा, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट. तो नाउ ये ग्राफ्स तो बन गए एंड इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया 0,1. तो देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन comes out to be 0,1. ठीक है. नाउ y is equal to 1/4 लाइन कहाँ है, this would be somewhere here. So let's say we draw this line. This is the line y is equal to 1/4. तो हमें एरिया निकालना है बिटवीन द कर्व्स एंड दिस लाइन. तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, would be स्टॉप परपेंडिकुलर, ये हमारा एरिया हो जाएगा. दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया. नाउ अब ये रिक्वायर्ड एरिया आएगा कैसे, वी कैन थिंक ऑफ दिस एज द एरिया बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स.
पहला एरिया हो गया इस कर्व के नीचे, दिस इज द एरिया अंडर दिस कर्व. द सेकेंड पार्ट इज वी कैन थिंक ऑफ द एरिया अंडर दिस कर्व, ये एरिया, एंड द थर्ड पार्ट इज ये वाला एरिया which is what, a rectangle. We can, and more importantly, since the curves are symmetrical, अगर हम एक एरिया निकाल लें ये या ये, तो we'll be able to just double it, कोई प्रॉब्लम नहीं. एंड if we want to find out separately तो भी हम निकाल सकते हैं. तो एरिया क्या होगा, required area would be what, ये पॉइंट क्या होगा, y is equal to 1/4 y, ये कौन सा ग्राफ है, y is equal to x plus 1 का होल स्क्वायर, और ये है y is equal to x minus 1 का होल स्क्वायर. तो y is equal to 1/4 cuts y is equal to x plus 1 by whole square at which point. तो y को 1/4 रख दें, is x plus 1 का होल स्क्वायर, taking square root x plus 1 comes out to be plus minus half, therefore x comes out to be minus 1 plus half and minus 1 minus half, rather minus 1 minus half. तो ये वैल्यू आई minus half and ये वैल्यू आई -3/2. तो the curve is cutting obviously -1 से लेफ्ट राइट में है, तो यानी ये पॉइंट क्या होगा, -half, 0. This would be the point. Similarly, y is equal to 1/4 cuts y is equal to x minus 1 whole square at which point, 1/4 को बराबर किया x minus 1 स्क्वायर से, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, x minus 1 is equal to plus minus half. तो x कितना आ गया, 1 plus minus half. तो it is either 1 minus half which is half or 1 plus half which is 3/2. बट जो हमारा पॉइंट दिख रहा है वो हमको 1 से लेफ्ट में दिख रहा है, देखो दिस पॉइंट वुड बी half, 0. दैट इज this would be this value half. तो ठीक है. Now the required area would be from -1 से -half area under this curve, and this curve is y equals to x plus 1 का होल स्क्वायर. तो y dx लेंगे तो x plus 1 का होल स्क्वायर dx प्लस from half to 1, from half to 1 कौन सा कर्व है, x minus 1 होल स्क्वायर dx by dx. एंड द थर्ड पार्ट इज द रेक्टेंगल. अब इस रेक्टेंगल की एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, एंड लेंथ इंटू ब्रेथ क्या है, लेंथ इसकी क्या है, -half टू +half, दैट इज 1 यूनिट्स. एंड ब्रेथ कितनी है, हाइट इज 1/4. बस अब हम लोग इसे सॉल्व कर देंगे. तो x plus 1 होल स्क्वायर का इंटीग्रल हो गया x plus 1 का क्यूब अपॉन 3, एंड इंटीग्रल फ्रॉम -1 से -half प्लस x minus 1 के होल स्क्वायर का इंटीग्रल इज x minus 1 क्यूब अपॉन 3 फ्रॉम half to 1, एंड रेक्टेंगल का एरिया है 1 into 1/4. तो दिस गिव्स यू -half सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 minus half is half cube is 1/8 into 3, and when you put -1 ये 0 आ जाएगा. Similarly when you put 1 0 आ जाएगा, माइनस when you put half you have -half का क्यूब यानी -1/8, that is plus 1/8 into 1/3 is 1/24 plus 1/4. So we have 1/24 plus 1/24 plus 1/4, which gives you 2/24 plus 1/4, and taking LCM we have 24, 2 plus 6, that is 8/24, which is equivalent to 1/3 square units. Therefore, the required area for this question is 1/3 square units. Now let's take the next question. Find the area of the region bounded by the curves y is equal to x square and y is equal to mod of 2 minus x square and y is equal to 2, which lies to the right of the line x is equal to 1. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. y is equal to x square का कर्व तो ये हो गया अपवर्ड पैराबोला. Now
how will you open y is equal to mod 2 minus x square? You will open this by definition कि इसकी वैल्यू 2 minus x square होगी अगर 2 minus x square greater than equal to 0 and minus times 2 minus x square खुलेगा अगर ये 2 minus x square is less than 0, which can be written as 2 minus x square and इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा x square minus 2 is less than 0, यानी अगर x की वैल्यू माइनस रूट 2 से प्लस रूट 2 है तो ये 2 माइनस एक्स स्क्वायर खुलेगा, और अगर x की वैल्यू रूट 2 से बड़ी और लेस देन माइनस रूट 2 है तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 खुलेगा. Now if we try to draw the graph y is equal to x square का ग्राफ ये है तो माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होगा? डाउनवर्ड पैराबोला. दिस इज y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर. Now if we add 2 to this तो क्या होगा? 2 यूनिट्स अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा. एंड अगर एक्स स्क्वायर में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दिस इज द ग्राफ ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर माइनस 2 क्या होगा? दिस शुड बी शिफ्टेड 2 यूनिट्स डाउनवर्ड्स. ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होगा. और सिंपली व्हाट वी कैन डू, मतलब इसका कॉम्बिनेशन या तो हम लोग लें इंटरवल्स में या सीधे सीधे 2 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होगा? 2 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये है और उसका मॉड लेंगे तो क्या होगा? मॉड क्या करता है? इफ द पार्ट ऑफ द ग्राफ इज अबव एक्स एक्सिस तो उसे रिटेन करते हैं एंड जो पार्ट बिलो एक्स एक्सिस उसको क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट कर देते हैं एक्स एक्सिस. तो ग्राफ क्या हो जाएगा? यहां से हम स्ट्रेट अवे 2 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ निकाल सकते हैं. नहीं तो हम इस इंटरवल्स में रिस्पेक्टिव ग्राफ्स बना सकते हैं. तो इफ वी नाउ ड्रॉ द ग्राफ, तो लेट्स ड्रॉ द एक्सिस फर्स्ट. ये हो गई एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये हो गई एक्स एक्सिस. नाउ वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का तो सीधे सीधे ग्राफ ये हो गया एंड 2 माइनस एक्स स्क्वायर का मॉड क्या हो जाएगा? दिस ग्राफ would be this graph. This point is 0, 2. This point क्या होगा? The point where it cuts the, तो y is equal to 2 minus x square mod x axis कहाँ काटेगा? जहाँ y 0 होगा, which means 2 minus x square is 0. Therefore x square is 2. Therefore x comes out to be plus minus root 2. So therefore this point is root 2 comma 0. And this is minus root 2 comma 0. Now, ये point of intersection क्या होगा? Point of intersection क्या होगा? ये portion of the graph, इसकी equation क्या होगी? ये mod 2 minus x square का कौन से पार्ट में आ रहा है? Which is greater than root 2. तो greater than root 2 पे तो ये क्या खुल रहा था? एक्स स्क्वायर माइनस 2. तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कर्व है एक्स स्क्वायर माइनस 2 और ये वाला जो पोर्शन है ये रूट 2 से कम है. तो रूट 2 से कम है तो यहाँ पे इक्वेशन क्या है? 2 माइनस एक्स स्क्वायर है. तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज गेटिंग इंटरसेक्टेड विद y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. तो इसको हम इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए यूज करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये वाला पार्ट ऑफ ग्राफ, ये पार्ट ऑफ ग्राफ इससे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी एक्स स्क्वायर इज गेटिंग इंटरसेक्टेड विद 2 माइनस एक्स स्क्वायर. तो क्या आ जाएगा? 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2. देयरफॉर x स्क्वायर इज 1. देयरफॉर x क्या आ गया? प्लस माइनस 1. तो देयरफॉर ये पॉइंट आ गया माइनस 1 कॉमा 0 और ये पॉइंट आ गया 1 कॉमा 0. लेट्स गेट रिड ऑफ दिस. Get rid of this. ये हम लोग का ग्राफ है. तो अब एरिया कौन सा मिलेगा? Which is to the right of the line y is equal to 1, x is equal to 1. तो x is equal to 1 हमारी ये लाइन होगी. इसके राइट में जो एरिया between the two curves and y is equal to 2. Now y is equal to 2 लाइन क्या है? ये लाइन है. would be a line would be this line
तो जो रिक्वायर्ड एरिया वो क्या है, एरिया बाउंडेड बाय द टू कर्व्स एंड बिटवीन द लाइन y is equal to 2 and to the right of x is equal to 1. तो required area क्या हो जाएगा, would be this area. This would be the required area. This would be the required area. अब ये required area निकालेंगे कैसे हम लोग. Let's say we mark this as A, B, C, D. तो फिर required area is equal to A, B, C, D, A. तो what should we do? ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट would be, इसका y कोऑर्डिनेट तो 2 है और ये किस कर्व पे लाई कर रहा है, y is equal to x पे, ये क्या होगा प्लस का √2. तो देखो ये √2 इस लाइन के साथ मैच हो रहा है. If we can find the area bounded by this curve from this point to this point, तो एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा y इक्वल टू x. उसमें से कौन सा एरिया रिमूव कर दें, ये वाला, यूज अ डिफरेंट कलर, ये वाला. इसके नीचे ये एरिया ये रिमूव कर दें तो ये एरिया आ जाएगा. व्हाट वी डू इज इंटीग्रेट फ्रॉम 1 से √2 एरिया अंडर द कर्व y इज इक्वल टू x स्क्वायर एंड उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर दें, ये √2 ही है, ये कर्व यहीं पे आ रहा है, ये यहाँ पे, तो माइनस क्या कर दें ये वाला कर्व एंड ये कर्व क्या है 2 माइनस एक्स स्क्वायर था, 2 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि √2 से कम है तो जब x की वैल्यू √2 से कम है तो क्या कर्व खुलेगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर. दिस इज 1 से √2. तो ये कौन सा एरिया आ गया, ये हमारा ये वाला एरिया आ गया, दिस एरिया, दिस इज dx एंड प्लस √2 से लेके लेट्स से व्हाट इज दिस पॉइंट, लेट्स से दिस पॉइंट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू ये कर्व की इक्वेशन यहाँ पे क्या होगी x स्क्वायर माइनस 2. तो x स्क्वायर माइनस 2 में y क्या है, जब ये y इंटरसेक्ट 2 से करेगा तो x स्क्वायर माइनस 2 इज 2, तो फिर x स्क्वायर आ गया 4, तो x कम्स आउट टू बी प्लस माइनस 2, तो ये पॉइंट पे प्लस का 2 होगा, दिस इज 2, 0. नेक्स्ट वील इंटीग्रेट फ्रॉम √2 to 2 एरिया बाउंडेड बाय ये लाइन के नीचे पूरा एरिया होगा. इसमें से कौन सा एरिया हटा दे, ये वाला एरिया हटा दे, तो कौन सा एरिया आ जाएगा, दिस एरिया. तो y इज इक्वल टू 2 है तो दिस वुड बी 2 माइनस एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व, और यहाँ पे इक्वेशन क्या है कर्व की, x स्क्वायर माइनस 2 dx. मॉड में डिपेंडिंग ऑन द इंटरवल वो अपना नेचर शो करेगा. तो हम लोग ने क्या निकाला कि जब x की वैल्यू माइनस √2 से प्लस √2 होगी तो ये फंक्शन चलेगा y इज इक्वल टू मॉड 2 माइनस एक्स स्क्वायर, और अगर x की वैल्यू √2 या से ज्यादा या माइनस √2 से कम है तो y क्या फंक्शन शो करेगा, x स्क्वायर माइनस 2, दैट इज मॉड 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 मिलेगा. नाउ दिस इज नाउ सिंपल इंटीग्रेशन. तो दिस गिव्स यू x क्यूब बाय 3 माइनस 2x प्लस दिस इज x क्यूब बाय 3, तो ट्वाइस हो जाएगा ये, दिस इज ट्वाइस. तो फ्रॉम 1 से √2 प्लस दिस वुड बी 2 माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, तो 4x माइनस x क्यूब बाय 3 फ्रॉम √2 से 2. जस्ट प्लग इन द वैल्यूज नाउ, 2 into 2 √2 by 3 minus 2 √2, और जब 1 रखेंगे तो 2 by 3 minus 2, this is first one. और दूसरे में 4 into 2 is 8 minus 2 2 is 4 is 8 by 3 minus √2 रखेंगे तो 4 √2 minus 2 √2 by 3. Now if we open this up, this is 4 √2 by 3 minus 2 √2
minus this gives you 2 minus 6 by 3 plus this gives you 8 minus 8 by 3 and minus 4 root 2 यानी 4 3s are 12 root 2 minus 2 root 2 by 3. So now on solving it, यहाँ एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 2 6 यानी minus 2 root 2 by 3 and this would be minus 4 यानी plus 4 by 3 plus this is LCM 8 3 is 24 यानी 16 by 3 and this would be minus this is 10 root 2 by 3. So we get 16 by 3 or 4 by 3 is 20 by 3 and this becomes minus 12 root 2 by 3. So therefore your answer becomes 20 minus 12 root 2 by 3 square units. This would be the answer to this question.